Hello students, today we will study about circles. सर्कल्स सर्कुलर फिगर्स के बारे में जब आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा तो सर्कल्स के बारे में पढ़ा होगा, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स जहाँ पे थी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए सर्कल. सर्कल होता क्या है. जैसे एग्जांपल है हम जस्ट लाइक ए बैंगल और डिस्क. जो डिस्क होती है हमारी सीडी प्लेयर में डलती है वो डिस्क हमारी क्या होती है, सर्कल. इट इज ए सर्कल जस्ट लाइक ए बैंगल. लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन सर्कल की क्या होती है. व्हाट इज ए सर्कल. इट सेज सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point. Suppose it is a fixed point and we take some points equidistant from this given point. इस given point से क्या है वो equidistant है. Then if we join these points, इन सभी points को join कर लें, collect कर लें, then that collection becomes a circle. ये collection क्या बन जाएगा, circle बन जाएगा. Means what is a circle? Collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point. एक fixed point से क्या है, fixed distance में. Means ये distance क्या है, सभी fixed है, equal है. Distance of these points from this given point. इस given point से इन सभी का distance क्या है, equal है. That's a circle. Suppose this fixed point is O and this fixed distance is R. Then what circle becomes? Circle क्या बन गया हमारे पास? Circle is collection of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point, and this fixed point is called center of the circle and this fixed distance is called radius of the circle. ये जो fixed point है उसको क्या कहेंगे हम, center, and this distance is called radius. रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल. एक सर्कल की जितनी भी त्रिज्याएं हैं वो सभी क्या होंगी हमारे पास, इक्वल होंगी. मींस सभी का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, सर्कल से इक्वल होगा. रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ सेंटर फ्रॉम सर्कल. सेंटर से सर्कल का जो इट इज सेंटर, और सर्कल पे कोई पॉइंट पी ले लें, ओ सेंटर हो गया. देन व्हाट इट इज, OP is called radius of the circle. It is distance of center from the circle. Center का सर्कल से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है. नेक्स्ट थिंग कम्स, अगली चीज क्या आती है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स ए सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन. एक सर्कल एक प्लेन को कितने पार्ट में बांटता है, डिवाइड करता है. इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है. देन इट डिवाइड्स दिस प्लेन. ये ब्लैक बोर्ड क्या हमारे पास एक प्लेन है. It divides this blackboard in how many parts? It divides this blackboard in 3 parts. What? It is interior part. It is exterior, outside the circle, and interior, inside the circle, and it is circle itself. It is circle itself. Circle divides it in 3 parts: interior, exterior, and circle itself. What is circular region? Circular region क्या होगा, circular region किससे बनता है, circular region interior and circle itself makes circular region. जो interior part है और circle खुद है वो क्या बनाते हैं, circular region. तो ये क्या हो गया हमारे पास, circular region. Now let's come on diameter, chord and other things. What is diameter? What is chord? If we take 2 points on the circle, अगर हम सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स लेते हैं, इट इज ए सर्कल विद सेंटर हो. सेंटर क्या है इसका, O है. वी कैन ड्रा एनी सर्कल विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. कोई भी सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं. कोई भी सेंटर लिया हमने और कंपास को ओपन किया और आर्क लगा दी, दैट विल बी सर्कल. तो मींस क्या हुआ, एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. कितनी भी रेडियस लेके हम ड्रा कर सकते हैं. If we take 2 points on the circle, suppose I have taken P and Q 2 points on the circle. सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए. Then this circular length, ये circular length है PQ. It is called arc of the circle. ये क्या हो गया हमारे पास, arc. ये मैंने सिंबल लगा दिया. It is symbol of arc. ये किसका सिंबल है, arc का सिंबल है. It is symbol of arc. And if I write it as PQ, then it becomes what? Length PQ. It becomes chord of the circle. ये क्या बन जाता है, सर्कल का chord बन जाता है. Chord of circle. It is called chord of circle. इसको क्या कहेंगे, सर्कल का chord कहेंगे. एक बार फिर से आर्क पे ही लौटे. What it is? It is minor arc. ये हमारे पास क्या है, minor arc है, minor arc. And what it is? It is major arc. ये हमारे पास क्या है, major arc. Major arc. वही सेम थिंग, इट इज chord. PQ क्या कहेंगे, इफ वी join PQ then it becomes chord. Chord divides a circle in 2 parts. Chord सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. इट इज एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेगमेंट. हर पार्ट को क्या कहेंगे हम, सेगमेंट. इट इज माइनस सेगमेंट एंड इट इज मेजर सेगमेंट. ये हमारे पास क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा. माइनस सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट.
तो व्हाट इज सेगमेंट, अगर कोई पूछे आपसे सेगमेंट क्या है, रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट, उसको क्या कहेंगे सेगमेंट। इट इज माइनर सेगमेंट एंड इट इज मेजर सेगमेंट, जहां पे जिस सेगमेंट में सेंटर लाई कर रहा है दैट विल बी मेजर सेगमेंट, और जिसमें सेंटर लाई नहीं कर रहा दैट इज माइनर सेगमेंट, वो क्या होगा हमारे पास माइनर सेगमेंट। बात आती है क्या, द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर, एक कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, सपोज AB इज ए कॉर्ड एंड इट पासिस थ्रू द सेंटर, देन इट इज कॉल्ड डायमीटर, तो इसको क्या कहेंगे हम डायमीटर। एंड डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्या डायमीटर से भी बड़ी कॉर्ड सर्कल की होती है, नहीं हो सकती, इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। इस सर्कल में हाउ मेनी डायमीटर्स, इस सर्कल के कितने डायमीटर्स हो सकते हैं, इस सर्कल में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स, कितने डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर्स हम ड्रा कर सकते हैं। एंड डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। OA R है, OB भी R है, देन डायमीटर बिकम्स, डायमीटर क्या बन जाता है हमारे पास, दैट इज डबल ऑफ रेडियस, वो क्या बन जाता है, रेडियस का डबल बन जाता है। एंड डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल, डायमीटर सर्कल को बांट रहा है कितने पार्ट्स में, इन 2 सेगमेंट्स, वही चीज, डायमीटर सर्कल को कितने सेगमेंट्स में बांटता है, डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इन 2 सेगमेंट्स। सपोज इट इज AB, डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर, डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर से, द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। Diameter divides circle in 2 segments and each segment is called semicircle, हर सेगमेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, semicircle, semicircle। तो diameter divides a circle in 2 parts and each part is called semicircle, सर्कल का जस्ट क्या हो गया, हाफ हो गया, that is half of circle, ये क्या बन गया, सर्कल का हाफ। हमने मेंसुरेशन पार्ट में एरिया ऑफ सर्कल भी पढ़ा, हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी पढ़ा। तो सर्कम एरिया तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 pi r, it is circumference of circle, total length of arc that is 2 pi r। मैंने बताया भी था, आपको ध्यान हो तो, कि when angle is 360 और जब एंगल कम हो तो corresponding arc की लेंथ क्या होगी, pi r theta upon 180। तो ये क्या हो गया हमारे पास, circumference of circle। अगर मैं मान लूं कि ये हमारे पास सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कुलर आर्क ओनली, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क वो क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ, उसकी क्या हो जाएगी, हाफ पाई आर हो जाएगी सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ। लेकिन अगर पूछे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ प्रोटेक्टर, इट इज जस्ट लाइक ए प्रोटेक्टर, ये क्या बनता है, एक प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होता है, सेमी सर्कुलर ही होता है। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सेमी सर्कुलर लेंथ हो गई, आर्क हो गया हमारे पास पाई आर, प्लस इट इज डायमीटर, प्लस डायमीटर, ये क्या हो गया, प्रोटेक्टर की सर्कमफ्रेंस हो गया, प्रोटेक्टर का क्या हो गया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर हो गया। तो अगर आपसे पूछे सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस विद डायमीटर, डायमीटर के साथ, तो क्या बनेगा, पाई आर प्लस 2r। या आपसे पूछे कि व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस आर्क, इस फिगर में जो बाउंड्री की लेंथ है, लेंथ ऑफ बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, पाई आर प्लस 2r। इस चैप्टर में हम डिफरेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, जो हम 7th क्लास में भी थोड़ा पढ़ के आए, लेकिन हमने उनको प्रूव नहीं किया कि इक्वल कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, अगर हमारे पास सेंटर पे एंगल्स इक्वल है तो कोर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे, इक्वल कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, कोड perpendicular from center to the chord bisect the chord, and line segment bisecting the chord through the center is perpendicular to the center, वो center पे क्या होगी, perpendicular, angle at the center double of angle in the remaining part, angle in same segment are equal, और उसका कन्वर्स भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती क्या है, इट इज ए सर्कल एंड इट इज एनी क्वाड्रिलेटरल। इस फिगर में आप क्या देख पा रहे हैं कि vertices of this quadrilateral, all the vertices of quadrilateral lies on the circle, वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, then that is called cyclic quadrilateral। Then what is cyclic quadrilateral, the quadrilateral of which all the 4 vertices lies on the circle, जिसके चारों वर्टिस सर्कल पे लाई करें तो वो क्या कहलाती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम ये भी पढ़ेंगे कि भी कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ऑलवेज, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वेदर दे आर साइक्लिक और नॉट, ये चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका कन्वर्स भी पढ़ेंगे कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट इज साइक्लिक, तो साइक्लिक होगी। तो काफी रिजल्ट्स हैं, और भी बहुत रिजल्ट्स बनेंगे उनके एक दूसरे का यूज करके। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट है वो है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, कि इन ए सर्कल इफ 2 chords are equal then they subtends equal angles at the center। उससे पहले एक चीज और देखिए, इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, एंड AB is any chord, AB मेरे पास कोई chord है, एंड सर्कल हैज सेंटर O and रेडियस R, सेंटर O and रेडियस क्या है इसकी R। देन AB आर्क कहें और AB chord कहें,
ए बी आर्क भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगी जितना ए बी कोड करेगी। तो अगर मैं ज्वाइन कर दूं ओ ए को ओ बी को, देन एंगल ए ओ बी, सपोज इट इज थीटा, दैट एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी। इस एंगल ए ओ बी को क्या कहेंगे हम, या एंगल थीटा को क्या कहेंगे, इट इज सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर। कोड के द्वारा ए बी की सेंटर के ऊपर जो सबटेंड किया गया एंगल, मतलब ए बी, A and B lies on the circle that are end points of the chord. Chord के क्या है, end points, और वहां से जो रेज सेंटर की तरफ जाएंगी that makes angle theta, वो एंगल थीटा बनाएंगी। तो थीटा called angle subtended by chord AB at the center, or you can also say theta is subtended by arc AB at the center। corresponding arc भी हो गई है, नहीं हो गई, तो ये क्या होगा, थीटा सबटेंडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग आर्क एट दी सेंटर। सेंटर पे ए बी आर्क ने क्या एंगल बनाया, एंगल थीटा। एक चीज और उससे पहले और भी देखें, इन रिजल्ट से पहले, इट इज ए सर्कल विद सेंटर ओ। अगर हम कहें कि ए बी एक आर्क है और एक आर्क सी डी है, अनदर आर्क इज सी डी, एक आर्क ए बी है, एक आर्क हमारे पास क्या है, सी डी है। इफ आई से आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, आर्क क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट, कोड्स क्या होंगी, इक्वल, ये ध्यान रखना है। आर्क अगर हम एक दूसरे को कट करके एक दूसरे के ऊपर रखें, दे विल कोइंसाइड कंप्लीटली, तो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स क्या होंगी, इक्वल, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। एंड कन्वर्सली इफ कोड्स आर इक्वल देन आर्क्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, और यू कैन से इक्वल, वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स क्या बनेंगे, इक्वल, एंड इफ कोड्स आर इक्वल देन आर्क्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। आर्क्स क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी आवर रिजल्ट। रिजल्ट पे चलते हैं। रिजल्ट क्या है, थ्योरम क्या है हमारी, कि इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। प्रूव दैट इक्वल कोड्स, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल subtends equal angle at the center। सेंटर पे क्या बनाएंगे, वो इक्वल एंगल बनाएंगे। मींस सपोज इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास क्या, एक सर्कल है, इट इज ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सेंटर ओ या रेडियस आर है। इट्स टू कोड्स आर इक्वल, इसके दो कोड्स हमारे पास इक्वल हैं, ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी टू कोड्स, दे आर इक्वल। वी हैव टू प्रूव दे सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एंड सी डी सबटेंड्स एंगल सी ओ डी। आप 1 और 2 से भी मार्क कर सकते हैं, या ए ओ बी और सी ओ डी ही रहने दे, कंप्लीट नाम लिख लें। तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ओ डी होगा। तो व्हाट इज गिवन, हमारे पास क्वेश्चन था इक्वल कोड्स, मींस इन सर्कल कोड्स आर इक्वल, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, सर्कल, सी रिप्रेजेंट सर्कल, इन सर्कल, इन सी मीन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। मींस क्या हो गया, इस सर्कल का सेंटर ओ रेडियस आर है। व्हाट इज गिवन, कोड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। दे सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो सेंटर पे क्या बना रही है, इक्वल एंगल्स बना रही है, हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, मेक दिस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल्स को क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ये रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसकी ये साइड ले ले, तो इसकी ये साइड ले ले, इसकी ये, तो इसकी ये तो चारों इक्वल हो गई। और ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सी डी। साइड 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 से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ में क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल्स में व्हाट क्या है हमारे पास, इसकी साइड अगर ए ओ लेते हैं तो इसकी क्या लेंगे, सी ओ, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है। इसकी साइड अगर मैं ओ बी लेता हूं तो उसकी क्या लूंगा, ओ डी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, व्हाट गिवन, ये क्यों है हमारे पास, इट इज गिवन कि कोड्स आर इक्वल। तो कौन सा रूल है क्या, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। AOB ट्राइंगल और COD के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। When two triangles are congruent, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD, तो इसका O पे एंगल मिडल में O लाई कर रहा है, इसमें मिडल में O लाई कर रहा है, इसका भी O पे एंगल AOB विल बी इक्वल्स टू एंगल COD। AOB क्या होगा, COD के इक्वल होगा CPC। तो क्या प्रूव कर लिया हमने यहाँ पे कि
When two chords of a circle are equal, जब सर्कल की दो chords equal हैं, then they subtend equal angles at the center, किससे कि हमने correspond जैसे साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। दूसरी चीज, मान लो ये तो था हमारे पास सेम सर्कल, इसी क्वेश्चन में आ जाए कि प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ टू सर्कल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये बात छूट गई थी हमारी। दो सर्कल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? व्हेन दिस टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? व्हेन देयर रेडाई आर इक्वल, जब उनकी रेडाई क्या हो? इक्वल, उनकी त्रिज्याएं क्या हो? सेम हो। इसका एक का सेंटर ओ मान लिया, एक का सेंटर ओ डैश मान लिया। इसकी रेडियस क्या है हमारे पास? आर, तो इसकी भी रेडियस क्या है हमारे पास? आर। इफ देयर रेडाई आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनको क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन बनता है, मान लो यही एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है कि इफ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन प्रूव दैट देयर इक्वल कोर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो, इसकी रेडियस आर हो, इसकी भी रेडियस आर हो, एंड देयर कोर्ड्स आर इक्वल, इनके कोर्ड्स भी क्या हो? इक्वल। ए बी इज इक्वल टू क्या हो? सी बी। ए बी सी डी के इक्वल हो, ए बी सी डी के इक्वल हो, एंड देयर रेडाई आर इक्वल, तो ये भी क्या हो गई? रेडियस, ये भी क्या हो गई? रेडियस। देन दे सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहां पे हमें प्रूव करना है AOB इज इक्वल टू CO डैश D। AOB इज इक्वल टू CO डैश D। दे आर डिफरेंट सर्कल्स बट दे आर कॉन्ग्रुएंट, उनकी रेडाई क्या है? इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उनकी इक्वल कोर्ड्स क्या बनाएंगे? इक्वल एंगल बनाएंगे किस पे? सेंटर पे। वही क्वेश्चन हो गया सेम। AOB को और COD को कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? ये दोनों साइड इक्वल है और ये साइड भी क्या है? इक्वल। वही साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो AOB इज इक्वल टू क्या होगा? CO डैश D। एंगल AOB क्या होगा? CO डैश D। दे विल बी इक्वल। तो सेम क्वेश्चन है ये, सेम सर्कल में डिफरेंट सर्कल्स, यहाँ पे सेम सर्कल में रेडाई इक्वल होंगी, यहाँ पे डिफरेंट सर्कल है बट रेडाई आर इक्वल, तो वही केस बन गया हमारे पास। ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका कन्वर्स है, हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ पे क्वेश्चन इसका कन्वर्स क्या हो गया? कोर्ड्स इक्वल हैं, तो वहां पे क्या है? एंगल्स इक्वल है। प्रूव दैट इफ टू कोर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। प्रूव दैट इफ टू कोर्ड्स सबटेंड्स, टू कोर्ड्स पूरा ही लिख लीजिए। प्रूव दैट इफ टू chords are not equal, two chords subtends equal angles at the center, then they are equal. क्वेश्चन क्या बन गया उसका कन्वर्स? उसमें कोर्ड्स इक्वल दे रखी थी, एंगल इक्वल प्रूव करने थे। यहाँ पे प्रूव दैट इफ टू कोर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, दो कोर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, देन प्रूव दैट कोर्ड्स आर इक्वल। मींस जो इसमें गिवन था वो क्या था कि एंगल AOB इन सर्कल विद सेंटर रेडियस आर, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। दो कोर्ड्स हैं AB और CD और वो कैसा एंगल बना रही है? सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रही है। दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स, वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दी कोर्ड्स आर इक्वल। जो उसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन था वो प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। करेंगे वही चीज इन ट्राइंगल AOB एंड COD को हम क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, AO इज इक्वल टू CO रेडाई है, OB इज इक्वल टू OD रेडाई है, AB इज इक्वल टू CD की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। AOB किसके इक्वल हो जाएगा? COD के। इट इज गिवन है ये हमारे पास। तो रूल क्या लग गया हमारे पास? एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, S से S कॉन्ग्रुएंस रूल। Triangles will be congruent, and when two triangles are congruent, then corresponding parts will be equal. AB will be equal to CD, CP/CT। यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो क्या प्रूव कर दिया हमने कि if two chords subtend equal angles at the center, दो chords सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, then chords will be equal। तो chords हमारे पास क्या होंगे? इक्वल। सेम वे, उसी वे में हम कर सकते हैं किसमें? डिफरेंट सर्कल में। if two circles are congruent, when two circles are congruent, दो circles congruent कब होंगे? when their radii are equal। कह रहे हैं if two circles are congruent and two chords subtends equal angles at the center, then the chords will be equal। यहाँ पे भी हमें दिया हुआ एंगल AOB और CO डैश D इक्वल है, तो इन ट्राइंगल्स को भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट करेंगे और AB इज इक्वल टू CD होगा। क्यों होगा? कि इन दोनों सर्कल में रेडियस क्या है? सेम है, रेडियस इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे दो रिजल्ट्स हमने पढ़े। क्या पढ़े हमने? कि भाई इक्वल कोर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर,
And if two chords subtend equal angles at the center, then the chords will be equal conversely. तो हमने थ्योरम भी की, उसका कन्वर्स भी किया. नेक्स्ट है हमारे पास कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord. कि किसी भी सर्कल में, इन एनी सर्कल, इफ वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord, देन इट विल बाइसेक्ट द chord. वो chord को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. लेट्स सी, चलिए देखते हैं. इक्वल परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord. स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने. If perpendicular is drawn from center, then it bisects the chord to the chord. chord पे ड्रा करते हैं तो chord को क्या करेगा? बाइसेक्ट. It is a circle, ये हमारे पास एक सर्कल है. And it is any chord, ये हमारे पास कोई chord है. And O is center. कह रहा है कि O से सेंटर से chord पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. OP is perpendicular to AB, then it will bisect the AB. वो AB को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. मींस अगर OP परपेंडिकुलर है तो AP विल बी इक्वल टू BP. वो इसको AP को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा. AP PB क्या होंगे? इक्वल. ईच विल बी हाफ ऑफ AB. तो व्हाट इज गिवन? गिवन क्या हो गया इसमें? इन सर्कल सेंटर और रेडियस आर. सर्कल जिसमें सेंटर O है, रेडियस R है. व्हाट इज? OP इज परपेंडिकुलर टू AB. OP AB पे परपेंडिकुलर मींस OP मेक्स 90 डिग्री एंगल विद AB. AB के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 90. ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. What we have to prove? If OP is perpendicular, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो क्या होगा हमारे पास? We have to prove AP will be equal to BP. AP और BP क्या होंगे? इक्वल. तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसके लिए छोटा सा. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ज्वाइन OA एंड OB. ज्वाइन OA एंड OB. OA और OB को क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन किया हमने किसको? OA को और OB को. OA OB को ज्वाइन कर दिया. इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को. इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? दीज आर रेडाई ऑफ सेम सर्कल. अगर देखें AOP राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज OBP भी राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल हो गए. बोथ आर 90. भाई राइट ट्रायंगल तो है ही, मैं पहले ही बोल रहा हूं हाइपोटेन्यूज है तो राइट ट्रायंगल तो है ही. तो दोनों राइट ट्रायंगल है, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है. एंड OP इज कॉमन. OP क्या है? दोनों में कॉमन है. तो कौन सा रूल लग जाएगा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो AP इज इक्वल टू क्या होगा? BP होगा. तो हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AOP एंड BOP. इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP. AOP और BOP ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा हमारे पास? AO इज इक्वल टू BO. इसको क्या ले लिया हमने? हाइपोटेन्यूज. राइट ट्रायंगल में 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. व्हाई दे आर इक्वल? दे आर रेडाई ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल की जो रेडाई होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है. रेडियस वो होती है इक्वल होती है. AO इज इक्वल टू क्या हो गया? B हो गया. एंड एंगल 90, इसका एंगल 1 मान लू मैं ये, तो ये क्या मान लिया मैंने? एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ईच 90 डिग्री हो गया. व्हाई? बिकॉज OP परपेंडिकुलर टू AB. क्योंकि OP AB पे परपेंडिकुलर है, देन इट मेक्स 90 डिग्री विद ईच अदर. ये दोनों लाइन क्या बनाएंगे? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे. एंड OP इज इक्वल टू OP. ये क्या हो गई? यानी साइड. कोई साइड हो गई तो कॉमन है ये हमारे पास. वाई? OP इज इक्वल टू OP वी आर टेकिंग, इट इज कॉमन. OP उस ट्रायंगल की भी साइड है, इसकी भी साइड है, दोनों की साइड है. तो कौन सा रूल लग गया? बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल AOP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP. AOP होगा वो BOP के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल. AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? BP. क्या कहेंगे? CP कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. से ही हमें प्रूव करना था. तो किससे किया हमने? RHS से. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या प्रूव कर दिया कि परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट. अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इसका कन्वर्स है. इसका कन्वर्स वही चीज कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड. सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें. मींस यहां पे दे दिया हमारे पास अगले क्वेश्चन में कि AP इज इक्वल टू PB है, तो वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर. OP है वो परपेंडिकुलर होगा. तो देखिए एक बार,
इसमें जो गिवन था वो उसमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना था वो क्या है, गिवन है। जैसे सर्कल है, इन सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है एंड ए बी इज एनी कोड, ए बी मेरे पास क्या है, कोई कोड है, ए बी इज एनी कोड। उसमें ओपी से ओपी परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसमें ओपी परपेंडिकुलर प्रूव करना है। इसमें उसमें पी मिड पॉइंट प्रूव किया था, उसमें पी मिड पॉइंट प्रूव किया था, इसमें पी मिड पॉइंट दे रखा है। कह रहे हैं इफ वी ज्वाइन सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड, सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, मींस व्हाट इज गिवन इन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, व्हाट AP is equal to PB means P is midpoint. Line segment joining center to midpoint of chord. Center से chord के midpoint को join करने वाले line will be perpendicular to the chord. Means OP is perpendicular to AB. हमें prove करना है कि वो क्या होगा, AB पे perpendicular होगा। तो construction तो वही कर लिया हमने, क्या किया, join OA and OB, OA और OB को join किया। That are radii, equal है हमारे पास। P midpoint है तो means equal, और ये क्या है हमारे पास, congruent। तो कॉमन है, तो फिर से एओपी और बीओपी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से हो जाएंगे, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। तो क्या होगा, इन ट्राइंगल एओपी एंड बीओपी, इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी, एओपी और बीओपी ट्राइंगल में व्हाट, एओपी और बीओपी ट्राइंगल में क्या लेंगे हम, कि इसकी साइड तो एओ है तो इसकी क्या है हमारे पास, बीओ। y radii of same circle, OP is equal to OP, y कॉमन, ये क्या हमारे पास कॉमन है। एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी साइड AP है तो इसकी क्या है, BP, y इट इज आल्सो गिवन, ये हमारे पास क्या है, गिवन है कि भाई सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास गिवन हो गया। तो ऑल थ्री साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल AOP will be congruent to triangle BOP. AOP है वो क्या बन गया हमारे पास, BOP के congruent बन गया। These two triangles will be congruent. ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे पास, congruent. When two triangles are congruent, तो इसका जो P पे एंगल होगा AOP का P पे एंगल, तो BOP का भी P पे एंगल, ये क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। एंगल नाम लिख सकते हो आप APO एंड BPO, या एंगल 1 और 2 मैंने मार्क कर लिया, एंगल 1 इज इक्वल टू CPCT। Suppose it is equation first. अब इसने दे रखा था कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, मींस ए पी भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए 1 और 2, 1 + 2 = 180। व्हाट रीजन, क्या रीजन लिखेंगे, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। वो कैसा पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं हमारे पास। तो एंड 1 and 2 आर इक्वल, 1 और 2 क्या है हमारे पास, इक्वल। रिप्लेस 2 by 1, 2 को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा, डबल ऑफ 1 is 180। कहां से आई ये चीज, वी हैव प्रूव्ड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये चीज प्रूव कर ली थी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 एंड 1 इज इक्वल टू क्या है, 2। तो 1 and 2 बोथ आर 90, मींस O से OP हमने ड्रा किया किस पे, AB पे, एंड इट मेक्स 90 डिग्री विद इट। वो AB के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो व्हाट वी विल से, वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर टू AB, मींस क्या हो गया हमारे पास, OP है वो AB पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या क्वेश्चन था, इफ वी ज्वाइन सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कोड, सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, देन दैट लाइन सेगमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। वो लाइन सेगमेंट कोड के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किससे किया हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। तो ईच क्या बन गया हमारे पास, 90 बन गया, तो ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या कॉन्सेप्ट था ये हमारे पास, कॉन्सेप्ट था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। एंड कन्वर्सली, ये क्या था उसका, कन्वर्सली इफ वी ज्वाइन सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कोड देन इट विल बी परपेंडिकुलर। तो वो क्या होगा उस पे, परपेंडिकुलर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम कि भाई क्या इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि दो कोड अगर इक्वल हैं, इफ टू कोड्स आर इक्वल ऑफ ए सर्कल then they will be equidistant from the center। उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज इट इज कोड AB एंड इट इज अनदर कोड, ये मान लो दूसरी कोड है मेरे पास CD। AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज O। सर्कल का सेंटर क्या है मेरे पास, O है। तो व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, कि इन सर्कल विद सेंटर O रेडियस R, टू कोड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD
देन वी हैव टू प्रूव दे आर इक्विडिस्टेंट। वो सेंटर से क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट होंगे। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मीन सेंटर से डिस्टेंस क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो OP परपेंडिकुलर है और OQ भी क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। OP इज इक्वल टू OQ। तो गिवन में ही ले लें आप, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। OP है वो AB पे परपेंडिकुलर है और OQ है वो CD पे परपेंडिकुलर है, एंड डिस्टेंस क्या होगा? ये इक्वल होगा इफ AB एंड CD आर इक्वल। मींस क्या प्रूव करना है? टू कोड्स आर इक्वल, देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस सेंटर। वी हैव टू प्रूव OP इज इक्वल टू OQ। तो क्या करें? ज्वाइन कर लें। AO को ज्वाइन कर दिया मैंने और CO को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन AO एंड CO, किसी एक को कर लें। AO और OD को भी कर लें, OB और OC को कर लें, किसी एक को कर लें। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने? ज्वाइन OA एंड OC। OA और OC को क्या कर लिया? ज्वाइन। हमें प्रूव करना है OP इज इक्वल टू OQ। OP और OQ की इक्वल है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कॉन्ग्रुएंट करें तो एक चीज तो देखिए, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है इस ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, ये रेडियस है तो ये रेडियस है। एक साइड चाहिए हमें, तो साइड OP OQ तो इक्वल प्रूव करना है, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या आ सकता है? AP इज इक्वल टू CQ आ सकता है। AP को CQ के इक्वल प्रूव करना है, तो क्या लेंगे हम? AB एंड CD आर इक्वल। AB और CD क्या है हमारे पास? इक्वल है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट। तो उनके हाफ भी क्या होंगे? हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। AB का हाफ CD के हाफ के इक्वल होगा। टू थिंग्स आर इक्वल, देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल। उनके हाफ्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। हाफ ऑफ AB का हाफ क्या बनता है? AB का हाफ क्या बनता है? AP भी बनता है, PB भी बनता है, AP। और इसका हाफ क्या बनता है? CQ। क्यों बनता है ये हाफ? लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होगा वो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो AP इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? CQ आ गया। तो एक बार फिर से चलें इसी में। एंगल 90 है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है एंड वन साइड इज इक्वल। तो RHS से क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो OP इज इक्वल टू क्या होगा? OQ। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल AOP एंड COQ, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COQ। AOP और COQ ट्रायंगल्स में व्हाट? इसका एंगल मान लो मैंने मान लिया एंगल 1 है, और ये एंगल मान लिया मैंने क्या? एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90। वाई 90? क्यों है 90? क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB पे, OQ परपेंडिकुलर है CD पे। दूसरी चीज, इसकी साइड AO है तो इसकी साइड क्या है? CO। हाइपोटेन्यूज है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की त्रिज्या है, रेडाई है। और दूसरी अगली चीज, AP इज इक्वल टू CQ। AP CQ के इक्वल क्यों है? एनी साइड हो गया बाई फर्स्ट से। तो क्या बन गया हमारे पास? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बन जाएगा? ट्रायंगल AOP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ। AOP होगा वो COQ के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। OP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? OQ। CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि कोड्स इक्वल थी तो उनका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? इक्वल। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल जो कोड्स हैं वो सेंटर से क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी। यही बात हमें प्रूव करनी थी। अगला क्वेश्चन है, इसका कन्वर्स है कि इफ टू कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, दो कोड्स सेंटर से क्या है? इक्विडिस्टेंट है। तो मींस AB और CD दो कोड्स हैं एंड दे आर इक्विडिस्टेंट, मींस OP इज इक्वल टू OQ। डिस्टेंस निकालना है तो OP परपेंडिकुलर टू AB भी लेना होगा, OQ परपेंडिकुलर टू CD भी लेना होगा। व्हाट वी हैव टू प्रूव? क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव कि AB इज इक्वल टू क्या होगा? CD होगा। AB CD के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो किससे प्रूव करें? वही चीज, ट्रायंगल्स को क्या करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट। मान लो मैंने ज्वाइन कर दिया OA को और OC को। एक बार फिर से देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि टू कोड्स आर इक्विडिस्टेंट। दो कोड्स ABCD वो सेंटर से क्या है? इक्विडिस्टेंट है।
मींस ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओक्यू है। ओपी और ओक्यू क्या है, इक्वल है, पहले इक्वल दे रखा है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया ओ एक और ओसी को, वही फिगर रख लिया। अब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करें, इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल सीओक्यू, एओपी और सीओक्यू ट्राइंगल्स में व्हाट, इसकी एंगल 1 है तो इसका एंगल 2 है, 90 है, क्योंकि डिस्टेंस हमने लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इक्वल दे रखा है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल दे रखा है। तो दूसरी चीज क्या, सॉरी परपेंडिकुलर हमने लिया है और डिस्टेंस इक्वल दे रखा है। तो दूसरी चीज AO इज इक्वल टू CO, दोनों ट्राइंगल के क्या हाइपोटेन्यूज हैं और वैसे इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। और OP इज इक्वल टू OQ, डिस्टेंस इक्वल, एनी साइड हो गया इट इज इक्वल। तो कौन सा रूल लग गया, बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तब हमने साइड ये ली थी, अब साइड OP और OQ है हमारे पास। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOP will be congruent to triangle COQ, AOP होगी वो COQ के क्या होगी, congruent होगी। and when two triangles are congruent, दो ट्राइंगल अगर हमारे पास congruent हो तो corresponding parts AP is equal to क्या होगा, CQ होगा, क्या लिखेंगे, CPC, AP is equal to क्या होगा, CQ होगा, corresponding parts of congruent triangles। when two things are equal then their doubles are also equal, double of AP is equal to double of CQ। एंड व्हाट इज डबल ऑफ एपी, एपी का डबल क्या है, एबी। क्यों है भाई, ये चीज ध्यान देनी है, एबी कोड थी, कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो बाइसेक्ट करेगा, मींस एपी और बीपी तो पहले ही इक्वल थे, क्यों, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। एपी और पीबी इक्वल थे तो उनका डबल क्या हुआ, वो दोनों हाफ एबी के, तो उनका डबल क्या हुआ, एबी हुआ। तो डबल ऑफ एपी इज इक्वल टू एपी, डबल ऑफ सीक्यू इज इक्वल टू सीडी। रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। डबल ऑफ एपी एबी क्यों हुआ, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल, मींस पूरी लाइन एक पार्ट का क्या है, डबल है। तो डबल ऑफ एपी इज एबी, डबल ऑफ सीक्यू इज सीडी। यही बात हमें प्रूव करनी थी, क्या, कि इफ टू कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दो कोड है एबी और सीडी, वो सेंटर से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, देन कोड्स विल बी इक्वल। तो कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल, किससे कर दिया हमने, आरएचएस से। तो स्टूडेंट्स वी विल स्टॉप हियर, यहीं पे हम रुकेंगे। हमने आज यहाँ पे 6 रिजल्ट्स डिस्कस किए, सर्कल की डेफिनेशन, व्हाट इज कोड, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज सेमी सर्कल, ये चीजें तो पढ़ी, साथ में 6 मेन थ्योरम्स हमने पढ़ी, रिजल्ट्स हमने की। पहला रिजल्ट क्या था हमारा, इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड इट्स कन्वर्स, इफ टू कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे विल बी इक्वल। दूसरा हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड एंड इट्स कन्वर्स, if we join center to the midpoint of the chord then it will be perpendicular to the chord। तीसरा हमने पढ़ा equal chords are equidistant from the center, equal chords हैं वो सेंटर से equidistant होंगे, और उसका कन्वर्स क्या किया हमने कि if two chords are equidistant then they will be equal। तो कल हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपने कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स हैं जो बचे हुए हैं, तो इन रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से माइन्यूटली देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना, और तभी आप इस रिजल्ट्स को, अदर रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।